Hello students, Namaste. I told at last period about the about many headings, but last heading was number of subsets of a set. Some students said, please repeat last heading again. In this reference, I have taken this decision that I repeat this heading again for understanding to all of you. Last heading was number of subsets of a set. Number of subsets of a set. Number of subsets of a set. What is number of subsets of a set? Number of subsets of a set containing n elements is to the power n. If any set has n elements, then the number of subsets of that set will be to the power n, where n is number of elements of the set. Suppose that A is a set. Here we observe that 1, 2 are two elements, n is equal to 2. Then how many number of subsets of this set? The number of subsets 2 to the power n, 2 to the power 2 to 2 is 4. How many subset will be of this set? How many subsets of this set? 4. Which be 5. We know that 5 subset of every set. 5 is subset of every set. 5, 1, 2, 1, 2. Every set is subset of itself. Every set is subset of itself. So this 5, 1, 2, 2, 1. So number of I have tried to clear the number of subsets of a set. What is the number of subsets of a set? 2 to the power n, where n is number of elements of the set. In this formula on putting the number of elements of the set, you can know how many subsets possible of the given set. Okay? Now, next heading, power set. What is power set? Formed set by subsets of the given set is called power set of the given set. It's called power set of the given set. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2 है, इसके सबसेट्स कितने हैं? 5, 1, 2, 2, 1. दीज आर सबसेट्स. इन्हीं से हम एक सबसेट बनाएं, जो हम सेट बनाएं, इन्हीं सबसेट से बनाएं. तो वो जो सबसेट से हम सेट बनाएंगे, इन सबसेट से जो हम सेट बनाएंगे वो क्या होगा? पावर सेट. फॉर एग्जाम्पल इट इज डिनोटेड बाई पीए. सो पीए इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 1, 2, 2, 1. It is called power set of this set. It is called power set of this set. The set formed by all the subsets of a given set is called the power set of the given set. It is denoted by PA. अगर हम कोई भी सेट ले लें और उसके सबसेट्स बना लें, सबसेट्स बनाने के बाद उनको कर्ली ब्रैकेट में उन सबसेट्स को रख दें, तो जो सेट बनेगा उसी को हम पावर सेट कहते हैं, और ये ऐसे इसको पीए से डिनोट करते हैं. नाउ यूनिवर्सल सेट. हियर वी ऑब्जर्व दैट A, B, C are 3 sets and U is also set. Here we observe that A, B and C are proper subsets of this set. Since 1, 2 is element of A which belongs in this
3, 4 is element of B which belong in this. 5, 6, 7 is element of C which belongs in this. So all these sets are proper subset of this set. If anywhere it may be possible that some given sets be proper subsets or subset of a given set, then this set is called universal set of these proper subsets or subsets. I hope that you understand it. आपने एक सेट ये लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, 3 सेट प्रॉपर सबसेट ले लिए, वो सभी इसके हम देख रहे हैं सबसेट जो सेट लिए हैं इसके प्रॉपर सबसेट हैं, तो ये सभी इसके जो प्रॉपर सबसेट हैं, तो ये जो है सेट, ये इन सबका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। सिंपल सी बात है, इनका सबका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। लेकिन शर्त है कि ये सभी जो दिए गए हैं वो सब इसके क्या हों? प्रॉपर सबसेट हों या सबसेट हों। सेट ऑपरेशन में जैसे नंबर्स पर ऑपरेशन लगती हैं वैसे ही आपके सेट्स पर ऑपरेशन लगती हैं, लेकिन नंबर्स की एक ही ऑपरेशन सेट पर आप अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन वाली है, डिफरेंस ऑफ द सेट, और कोई नहीं लगती है। आपकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कोई भी ऑपरेशन सेट पे नहीं लगती, केवल एक ही लगती है, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ द सेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए और ये बी, और इसका हमको डिफरेंस लेना है, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ए माइनस बी करेंगे, सपोज कर लीजिए। तो अब इसके देखिए ये कॉमन एलिमेंट है। अब हम जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? ए से। तो ए के जो एलिमेंट बच रहे हैं उनको हम लिखेंगे, ये हो गया। इसके नहीं लिखेंगे, जिसको घटा रहे हैं, अगर कॉमन नहीं है इसके साथ तो इसका जो एलिमेंट बचेगा उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, इधर देखो ये कैसे एग्जाम्पल और लिया है। 1, 2 दोनों देखो ये है, 1, 2 दोनों कॉमन है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो बड़ी परेशानी, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसे नल सेट कर लिखते हैं। इसका नहीं लिखेंगे, हम उन्हीं और एलिमेंट्स को लिखेंगे जिससे घटा रहे हैं। अगर नहीं बचता है तो फाई कर देंगे। इसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री सेट। कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है कि जैसे आपके एक यूनिवर्सल सेट दिया है U 1 से 10 तक, 1, 2 अप टू 10, तो और एक ए दिया है आपका 1, 2 ये दिए। तो अब इसमें से यूनिवर्सल से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको जो आपका कंप्लीमेंट्री सेट होता है, कंप्लीमेंट्री सेट को हम a डैश या a टू पावर c ऐसे लिखते हैं। a टू पावर c से भी लिखते हैं या a डैश से भी लिखते हैं। इससे इसको आप घटा दीजिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट, यानी कि u माइनस a। तो कौन कौन से u से घटाएंगे? ये दोनों हो गए, ये दोनों तो कॉमन हो गए। अब जो बचे कौन से बचेंगे? 3, 4 ना, 3, 4 अप टू 10, ये जो बचेगा ये कहलाता है इसका कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। ए डैश इज कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। समझ रहे हैं? यानी कि इफ ए इज अ सेट and U is universal set, then those elements of U which do not lie in A, formed set by those elements is called complementary set। यानी कि ए और यू तो उन एलिमेंट से जो ए में ना हो, जो ए में बिलोंग न करते हो। ए में कौन कौन नहीं बिलोंग करता? 3, 4, 5, 1, 2 तो है,
तो 1 2 इसके हो गए, बिलोंग कर रहे तो उनको छोड़ दीजिए। 3 4 5 अप टू 10, तो इनसे जो सेट बनेगा, इनसे जो इसमें नहीं है उनसे जो सेट बन रहा है, ये वाला सेट इसका क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री सेट कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।